Suresh Dudi. I am working in Levi's Cross and Company. I am in 2003 textile chemistry batch. Thank you. Hello. My name is Pramod Saini. I am passed out of 2002 and now I am involved in my family business. मेरा नाम दिव्यांश शेखर है। मैं 2009 बैच से पास आउट हुआ हूँ और मैं VIT कॉलेज में लेक्चरर हूँ। ये जो भी एग्जाम जो जूनियर्स ने हम लोगों के लिए किया है तो मैंने बहुत एंजॉय किया है और थैंक यू जूनियर। हेलो, आई एम राहुल खुराना, 2001 बैच। आई एम वर्किंग नाउ एज we have got our own carpet manufacturing and yarn manufacturing unit, and we are exporting to most of the countries in the world. Thank you. Hello, good evening everybody. Myself Kapil Dixit, 10th batch. I am working as brand director in Yarn for Different Divisions Punjab. Thank you. मैं विकास जैन 10th बैच से पास आउट हूँ और मैं जयपुर में टेक्सटाइल लाइन से जरा हट के सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी का होलसेल बिजनेस करता हूँ। थैंक यू। Hi, this is Abhishek Jain. I passed out in 2001. I did my MBA after doing engineering from IIT Kanpur and right now working as manager in Genpact. Thank you. Myself Chetan Kumar, passed out in 2001 batch. After engineering, I did my NIT and currently working in General India Fashion Limited. My name is Sarvesh Malviya. I am in South Africa, 2009 batch CT, and presently I am working with BSL Limited Delwara. Thank you. Myself Bhavan Shankar Maru. I am 2009 batch pass out. I am HOD Electronics in VIT College. Myself Legrand Galo. I am a supervisor in I also say all juniors, they behind success, treat and summarize all the things and repeat minimum 2 times. Thanks all of you. Party bhi hogi. Hi everyone, myself Anukul Raka, 2009 pass out, textile chemistry branch. Well, I want to say a few words that among these great personalities, I feel myself very small, but being a part of this college, I feel too great, too big. Thank you a lot. Hello everybody, myself Bajrang Chaudhary, I am in lecturer in MIT College Jaipur, and I am also holding my chemistry classes for C and C++ language. Thank you. मेरा नाम दिनेश कॉलेज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब से 2009 में मैंने पास आउट किया है तो अभी मैं अपने पापा के साथ टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा हूँ। My name is Abhishek Bora and I am from the last batch of latest batch of this college 2009 and I am pursuing for MBA, a good career over there. आज मैं एक चीज बोलना चाहूँगा जो मैंने रियली फील की है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे अच्छे सीनियर्स को देखा, उनके लिए ताली बजाई और बजाते हुए देखा और सारे जितने भी हम इस कॉलेज के पास थे उनकी तरफ से कहना चाहूँगा कि आज हमने एक ड्रीम देखा है कि कल को जब हम यहाँ पे आए तो हमारे लिए भी कोई ये ताली बजाए, इसलिए इस ड्रीम के लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच। Good evening all of you. Myself Bhagwan Saini. I passed out 2009 with special chemistry. Now I am working in processing Wellspun India Limited, Vapi, Gujarat. Thank you. नमस्कार, देवेंद्र कोनिया, अभी करंट पास आउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैच से। हमारे इलेक्ट्रॉनिक के कुछ जूनियर्स का ये कहना है कि यहाँ जो विभूतियाँ जो बेटी में सभी टेक्सटाइल की हैं, हम टेक्सटाइल से क्या फायदा ले सकते हैं। मैं मेरे सभी जूनियर्स को बोलना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल को पकड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते। ये विभूतियाँ अपने भी काम में आएंगी, अपन भी इनको पकड़ के खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद।
myself Surendra Chaudhary, passed out 2009, textile chemistry. Now I am working at BMD Banswara Finishing Department. Thank you. Hi, I am Rakesh Shikar from Bhilwara. I came here late because I have my birthday which I was celebrating with my parents. Now I am going to celebrate with you guys. Thanks for Thank you. Hello. अरे भाई कुछ बोलने दोगे कि उससे पहले ही वर्ष में सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूद हमारे सारे रेस्पेक्टेड सीनियर्स को मेरा साक्षात नमन। ये ओकेजन जो इन्होंने बनाया है ऑसम, योर टीम एंड ईच एंड एवरी मेंबर फॉर दिस थिंग। हमने सोचा नहीं था, हर बैच प्लान करता था कि अलुमनाई होगा, इट नेवर हैपेंड, बट दिस टाइम इट हैज क्रिएटेड इट। Myself Divakar Singh, 17 batch student that is passed out in 2008, right now working as a part of Western India Limited family as a merchandise. Hello junior bosses, I Rakesh Ramath, presently working with Nahar Singh Silke, Bhopal. शरद एक शादी अभी तक नहीं हो पा रही, नहीं आ पा रही अभी तक तो। अरे कहाँ ढूंढ ली यार अभी तक 2.5 साल में। ओके थैंक यू। गुरु यही नाम दिया आपके बैग में दिया है। अनिल शर्मा, R&D मैनेजर, नितिन स्टूडेंट भीलवाड़ा। थैंक यू। Hello. Friends, very slight mistake taken by ma'am. These all are my junior 2006. I am from 2005. My name is Yatendra Mishra, 2005 textile chemistry. Rightly, I am working with Bank of Baroda as a regional marketing officer. आज आप सभी को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कहना चाहूँगा सीनियर्स are the supporter, their blessings are required, but the juniors, all of you who deliver the things and the big things are always come in a small package. So 3 years to all you guys, to all juniors, and before MLBTEC is MLBTI, so मैं जो नारे लगाना चाहूँगा, who will hit the bullseye? Who will hit the bullseye? Thank you. Hello, I am Shilpita. I am working in Sangam Shootings as a development officer. I am from 2006 batch textile technology. Hi, I am Himlata Bishnoi. I am working in Sangam Shooting as a development officer. I am from batch 2006 textile technology. Hi everybody, Gautam here from 2006 batch. और बात करें कि क्या काम करता हूँ तो ये कहूँगा केला सिर्फ बेचता हूँ बस। ये विवेक आपकी वेलकम कमेटी का इंचार्ज था, जैसे आपसे भी और मुझे लगता है कल मैं इसको कुछ काम बताना था तो बोला बॉस मैं नहीं करूँगा। मतलब ये पहला जूनियर था जिसने मुझे काम के लिए मना कर दिया, बॉस मैं नहीं करूँगा, मेरा सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ बैठूंगा, फिर आप कल मुझे बोलोगे ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ। एक बार जोर से तालियां इसके लिए। थैंक्स। और good afternoon, this is Manish Gatani and I am from 2006 batch. Right now I am working in Bardwan Fabrics as a marketing officer in fabric marketing division. Thank you. Hello.
Anurag Sharma. I am working in BSN Limited. I am 2006 pass out, 80 pass out. Performance, I got a call to the Agrawal ma'am on stage for an awesome song here. राहुल को देख के गाऊंगी पक्का। ये गाना मैंने भिवानी में गाया था जब हम 15 जनों की टीम भीलवाड़ा से भिवानी टेक फेस्ट में गई थी। छुपा लूं दिल में प्यार मेरा, ये जैसे मंदिर में लोगी। छुपा लूं दिल में प्यार मेरा, ये जैसे मंदिर में लोगी। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, ये जैसे मंदिर में मोदी की। छुपा लूं दिल में प्यार मेरा, ये जैसे मंदिर में मोदी की। ये सच है कि ना था पाप तुमने, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर मन में छवि तुम्हारी, मगर मन में छवि तुम्हारी, ये जैसे मंदिर में मोदी की। छुपा लूं दिल में प्यार मेरा, ये जैसे मंदिर में मोदी। ये गाना TIT भिवानी में वहाँ के टेक फेस्ट में जब आपके MLBTI की टीम झंडे गाड़ के आई थी, IIT की, रुड़की की, सबकी टीमों के सामने अवर्स वॉज द बेस्ट आउटसाइड टीम दैट हैड पार्टिसिपेटेड इन टेक फेस्ट ऑफ TIT भिवानी। एंड शी वाज, इनके हाथ में एक रोटी थी, मैच के अंदर हम बैठे हुए थे, इनके हाथ में एक रोटी थी, हमारे एक और बैचमेट के हाथ में एक और रोटी थी, वो माइक के दोनों के। और जो गाना गाया गया है वो आज बिल्कुल आज हमारी वापस यादें घसी घसी ताजा कर दी है। थैंक यू सो मच। All the 6 of them, there are presently 5 of them here. One of them is not here. Gaurav, I think is not here. Richard Chaurasia, Gaurav Singh Tengi, Jayan Thakuria, Ranveer Roy, Arshad Khan, and Punashri Bhatia. They deserve a great round of applause. Gaurav is also here now. Great round of applause for all of them. Take a bow. Take a bow. That's it. इन लोगों को हम एलुमनी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इस प्रोग्राम को इतना सुंदर बनाने में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है। नाउ वी आर ऑल डिस्पर्सिंग फॉर द लंच, बट वी आर मीटिंग हियर अगेन। इट इज 5 minutes to 4। हम यहाँ पे एग्जैक्टली 5 बजे वापस मिल रहे हैं फॉर वन स्मॉल सेशन ऑफ एलुमनी अगेन। और एक हमारे पास एक बहुत स्पेशल एक प्रेजेंटेशन आया हुआ है जो हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हम 5 बजे वापस यहाँ पे मिलेंगे एंड आप सब लोग अब लंच के लिए निकल सकते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, ये पूरे हॉल का आप जो डेकोरेशन देख रहे हैं, इसमें भी छुपी हुई टीम है जिनको समय की कमी के कारण हम स्टेज पे नहीं बुला रहे हैं, पर लोगों ने मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों ने 2 रात तक लगातार इस पूरे हॉल की डेकोरेशन अपने हाथों से किया है। थैंक यू ऑल। On the alumni function,
साथ देंगे? क्या आप हम लोगों का साथ देंगे? So let's start the program with Saraswati Vandana. I would like to call over stage the girls who are presenting the Saraswati Vandana here. ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ॐ श्री गुरुवे नमः चढ़ायो अच्छा गजमुख को धूंधिल लाल विराजे गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय 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 जी गणराज विद्या दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मनता जय देव जय जय यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, आज की शाम मैं आपके बीच आया हूं कुछ विलंब से, इसलिए नहीं हूं कि मैं विलंब से था, बल्कि आई एम जस्ट लेट, क्योंकि लेट होने से आदमी चीफ गेस्ट बन जाता है। Is it? वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है ये, वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है ये, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये घर की है, मुझे नाम नहीं पता आपका। पंकज रीना। पंकज रीना। No, I have told you. मैंने सुना है कि लड़कियों के सरनेम बदलते हैं, मेरा सरनेम बदल डाला। Okay. My name is रीना। ओके, रीना जी है। रीना जी, बहुत खूबसूरत से अंदाज में आपने आज की शाम की शुरुआत की है। हम सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरे सामने बॉयज हैं या गर्ल्स हैं। ओके, हम एक काम करते हैं, गर्ल्स आपकी, बॉयज मेरे। Okay, well, I'm ready. Start shouting. बॉयज आर योर्स ना।
Okay, tell, ask the boys. Okay, boys, are you with me? Wow! Hip hip! Hip hip! अरे लड़कियों क्यों नाक कटवा रही हो मेरी यार, कमाल कर दिया। अब मैं भी क्या करूं, रीना से मैं अभी 3-4 बजे मिला था। रीना के बारे में आपको बता दूं, ब्यावर से यह हमारे बीच आई हैं, आप सब हमारे बीच में आई हैं और 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद में यहां तक पहुंची हैं। इनके पापा जी ने मालूम है इनसे क्या पूछा 12th पास करने के बाद, बेटा अब तेरी 12th हो गई है, अब तो क्या करेगी? बोलती है बीबीए। पापा के समझ में नहीं आया, पापा के समझ में नहीं आया, पापा के समझ में नहीं आया। एमबीए सुना, एमसीए सुना, एमएससी सुनी, बीएससी सुनी, तो बीबीए पूछ लिया बीबीए क्या होता है बेटा? बोले कि बॉयफ्रेंड की बाहों में आराम। अब लड़के मेरे हैं, लड़कियां मेरी? Well, boys, you say. तुम किसके साथ हो? आप लोग किसके साथ हैं? With me और पंकज? चलिए आज की शुरुआत थी आप सभी का मैं तहे दिल से आज की शाम इस मंच के जरिए और एमएलबी टेक के फिएस्टा 2010 में रीना के साथ इसका को होस्ट पंकज जायसवाल जो आज की शाम आप सभी को एंटरटेन करने के लिए यहां हाजिर हुआ है, तो दिल से स्वागत करता है। स्वागत और सम्मान के इसी कड़ी में आज की शाम के खास मेहमान भी हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। परिषद आदरणीय चेयरमैन नगर परिषद ओम जी नारायणीवाल का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत फिएस्टा Our guest of 2010 में। honor, रामपाल जी शर्मा, अध्यक्ष आर.एन. गुप्ता जी, सीईओ बीएसएल लिमिटेड। आइए, जिस छोटी सी औपचारिकता के लिए हम इंतजार कर रहे थे हमारे आज के शाम के खास मेहमानों का, यानी हमारे तीनों गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट और आज के इस एलुमनाई एसोसिएशन के इस शानदार से समारोह की अध्यक्षता फरमा रहे मिस्टर आर.एन. गुप्ता साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर और पूरी और मैनेजमेंट और वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे तीनों गेस्ट को मंच तक एस्कॉर्ट करें। लेफ्ट साइड में अरे भाई ने भी पूछ रहे नहीं यार, लक्की कलर लेफ्ट गेट लक्की कलर ले, वो लक्की नंबर लिखो, नंबर वो एड्रेस बता दे, नंबर दे रही हूँ मैं ताकि मैसेज कर रही हूँ, नंबर लिख जो, मैं 1 मिनट होल्ड करो बता रही हूँ। One four three 9828 143 227 227 ठीक है ना, ये नंबर पर कॉल कर लो। और पंजाबी से नाम है तो 10 मिनट बाद में बता, 2-3 नंबर मैसेज कर रहे हैं, एक ही लैब का ये सारा ही, ठीक है ना? वो एड्रेस पूछ कर चले जाओ। Thank you very much, all our guests of honor, chief guest and president. आइए, एलुमनी एसोसिएशन की इस खूबसूरत शाम में एमएलबी टेक का ये खूबसूरत सा टीम प्रेजेंटेशन फिएस्टा 2010 हमारे खास मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं। यूं तो यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं आप सभी इस कॉलेज के लिए एक आभूषण हैं, खास मेहमान हैं, मगर फिर भी हमारा ये सौभाग्य है कि इस मंच के जरिए हम आप सभी का स्वागत कर सकें। प्रस्तुत करते हैं एक खूबसूरत सा
performance, welcome song. So I would like to invite over stage Ashok Swankar to perform a welcome song for us. Ashok Swankar. No, sir. ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव ही। दोनों स्क्रीन पे खाली पेंटिंग दिख रही है सामने से। चल रहा होगा आसपास, वो नहीं मालूम, वो मेरा नहीं चल रहा। ये वाली स्क्रीन का है, ये वाली स्क्रीन नहीं है, डायरेक्ट मेरा रिकॉर्ड आ रहा है। सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं ओम जी नारायणीवाल साहब का, रामपाल जी शर्मा साहब का, आर्यन गुप्ता साहब का, नौलखा साहब का, जिन्होंने अपने अति व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। साथ ही मैं स्वागत करता हूं इंडस्ट्रीज से आए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। साथ ही मैं स्वागत करता हूं देश विदेश से दूर दूर से आए हुए मेरे सभी भूतपूर्व साथियों का, जिन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। साथ ही मैं स्वागत करता हूं कॉलेज स्टाफ, विद्यार्थीगण और मेरे टीम मेंबर्स का, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना सहयोग दिया है। धन्यवाद। Rampal Ji Sharma, our guest of honor, our
श्री शैलेंद्र जी शर्मा से निवेदन करना चाहूंगी कि उन्हें बुके प्रेजेंट करके उनका हार्दिक स्वागत करें। मिस्टर रामपाल शर्मा प्लीज हमारा इस सम्मान कबूल करें। मैं डॉक्टर दिनेंद्र शर्मा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे अध्यक्ष आर्यन गुप्ता जी को बुके प्रेजेंट करके उनका हार्दिक स्वागत करें। मिस्टर आर्यन गुप्ता प्लीज हेल्प दिस ऑनर। मिस्टर आर्यन नवलखा से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया हमारे सम्मान को कबूल करें। ये था आज की शाम का वह सम्मान समारोह जो हमारे खास मेहमानों को इस कॉलेज ने बख्शा है। तकरीबन 20 साल पुराने, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि तकरीबन 20 साल पुराने स्टूडेंट यहाँ पर, स्टूडेंट्स ही कहूंगा क्योंकि नाउ दे आर इन कॉलेज कैंपस और वो अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि वो स्टूडेंट्स हैं। इज इट कहाँ चली गई रीना? मैं जब सोच रहा था ये जितना भी कुनबा यहाँ बैठा है 20, 18, 17, 15, 14, 10 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है और एक दूसरे के साथ जब मिल रहे हैं तो कैसा फील कर रहे होंगे? कुछ लगता है आपको? वो देखिए उनको कैसे हाथ बांध के बैठे हैं, समझ रहे? फैकल्टी में अरे स्टूडेंट कौन रही हैं इस कॉलेज की? स्टूडेंट ऑफरेज के स्टूडेंट। स्पॉट दीजिएगा। मैम आप कैसा फील कर रही हैं? Say something. What's your name? What's your name? What's your name, ma'am? Surabhi from first batch. ओहो, फर्स्ट बैच की सुरभि जी जोधपुर से आई हैं। और आपको बता दूं कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोल पाई, क्योंकि वो रुआसी सी हो रही हैं कि मैं अब भी 20 साल जवान क्यों नहीं हूँ। You are still, huh? Yes, I am. Okay. She's just of 19 with the experience of 20 years. So Pankaj, see the confidence. Okay, ma'am. Welcome once again. आइए, मैंने थोड़ा सा माहौल को इसलिए बदला है क्योंकि हम काफी देर से लैंडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हमारा सबका माहौल है, लेकिन बहुत से नए लोग इस कॉलेज से जुड़ना चाहते हो। प्रिंसिपल सर बताएंगे इस कॉलेज की उन खासियतों के बारे में। I would like to welcome the chief guest of this occasion, Shri Omji Narayani Wall, Chairman Nagar Parishad. Guest of honor, Shri Rampal Ji Sharma, Chairman CCB. Shri Aryan Gupta Ji, CEO BSNL Limited. All these distinguished guests, industry people, students, ladies and gentlemen, this is really a great occasion that we have organized first alumni meet in Bhilwara Engineering College. This is a great event not for you, it's a great event for the college also. So I would like to introduce, because I know every student knows about the college as well as the alumni, but just for the introduction of the industry people, I understand that in such functions you don't like speech, but this is customary that we have to really introduce about the college to our guests. But I think this is not the decorum you are maintaining here. If this is the education we are imparting you, then I think we are failing in our duties. So I once again welcome all the guests here and thank you. Hello. See, I have been also a student 25 years before. But when we have our guests among us, I think it's our duty to maintain the decorum of this
And I really don't like when my students shout when my guests are sitting. I know I am a temporary principal of this college, but I have tried my best to do all the works, and I did not do whatever I wanted because there are some limitation when you are not holding the full-fledged charge of this college. So I once again wish that this event should be a great success for all the alumni, and I know how much hard efforts they have put in here. So I really appreciate the efforts which has been made here, and once again thank all my guests who have come over here, taking all kinds of the. So I hope now you will maintain the decorum and will listen to our guests who have come here and want to convey some messages to you. Thank you. Thank you. Thank you.
समथिंग। फॉलो फॉलो प्लीज फॉलो। मैं उसको हमारे बीच में लगता है कि आप बहुत भाई साउंड नहीं प्लीज, साउंड नहीं। आपका चेहरा देख के लगता है कि आप बहुत बहुत खुश खुश रहते हैं। आपकी शादी होगी सर? एक बार हुई है? अच्छा अच्छा। तो सर मैंने सुना है कि शादी से पहले और शादी के बाद में इंसान में बहुत फर्क आ जाता है। हाँ जी, अरे माइक लाओ ना एक मिनट, रही ना, देखो माइक लेके आओ। सबके साथ ऐसा नहीं है। स्टिल यू आर फीलिंग देयर इज स्कोप फॉर सम अदर गर्ल, इज इट? सिर्फ एक ही बात नहीं है, सबके लिए सोचना है। अच्छा सर, प्लीज टेल योर नेम प्लीज, प्लीज टेल योर नेम प्लीज। लाइफ बहुत लंबी चौड़ी है, गर्ल एक चीज नहीं है। सर प्लीज टेल योर नेम। दिलीप किरोड़ीवाल। मिस्टर दिलीप किरोड़ीवाल, अभी आप कहीं काम कर रहे हैं सर? हाँ, RSWM हरिग्राम गुलाबपुरा में। गुलाबपुरा में है, यहाँ गुलाब करने के लिए आए। सर हम चाहते हैं कि जैसे आपने सबसे पहले माइक्रोफोन हाथ में लिया, तो मैं वो समझ सकता हूँ कि जब आप युवा तो आप हैं, जब कॉलेज स्टूडेंट रहे होंगे तो शायद बहुत हंसमुख मिजाज रहे होंगे, रहे ना? तो सर एक अपने जमाने का कुछ कोई भी बात बता, अपने समय की कोई भी एक बात। चलिए एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके दोस्त आपको छेड़ते थे एक लड़की को लेके, आप उस लड़की का नाम बता दीजिए। हमारे बीच तो एक ही लड़की थी और वो सुरभि अग्रवाल, जिसको सभी बहन कहते थे, इनके अलावा सब कहते थे। अरे सर ओके, मैंने माहौल को इसे थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि अब हमारे बीच आ रहा है लाफ्टर का खजाना। एक वो कलाकार जिसके लिए अगर आप सभी ने अपनी करतल ध्वनि का प्रयोग नहीं किया तो मैं एक ही बात कहूंगा कि अगले जन्म में बजाना पड़ेगा ताली। जोरदार तालियों के बीच रिसीव कीजिए लाफ्टर 4 चैंपियन, ताली मास्टर नन अदर देन सुरेश अलबेला। अरे सुरेश जी के लिए ताली भाई, जिससे दिमाग पे लोड पड़े, क्योंकि इनके पास दिमाग इसलिए है। वरना तो ये पंकज जी भी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। मैंने पिछले दिनों इनसे पूछा, यार ये पढ़ाते हैं कहीं, मैंने इनसे पूछा यार आप टीचर क्यों? ये बोले यार मेरे पिताजी टीचर, मेरे दादाजी टीचर, इसलिए मैं टीचर। मैंने कहा आप एंकर क्यों? ये बोले मेरे पिताजी एंकर, मेरे दादाजी एंकर, इसलिए मैं एंकर। मैंने कहा पंकज जी आप कुंवारे क्यों? रे सुरेश, जहां तू जाए हो तेरी जान जान, जहां तू जाए हो तेरी जान जान, कर्जा कुछ ऐसा कि हर गली से आवाज आए अब्बा जान। इसलिए छोड़ दिया। बढ़िया है, हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी में योगदान तो है कुछ। थैंक यू, रिसीव सुरेश अलबेला को। वैसे मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि सच मानो मैं नवजात शिशुओं पर कभी भी हमला नहीं करता। और उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूं। आराम से खींच लो, आप फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर तो सुरेश अलबेला और नीचे पूजा भट्ट। मतलब कैमरे वाले कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा थोड़ी है। इधर उधर बहुत सारे नौजवान खड़े हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कहीं भी अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाओ। भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया ही होगा। हाँ, और इधर से कोई आओ मत, इधर से कोई आता है तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मुख्य अतिथि आ रहे हों। तो इधर आदमियों के बनाने की मशीन लगी हुई है क्या? चलो, बच्चे भी आ गए अब तो। हाँ, तीनों के हाथ में मोबाइल है। वाह वाह, ये बच्चों का विशेष प्रेम है मेरे से। मैं भी ये बच्चा, ये जिस किसी की भी पांडुलिपि है इसको भी संभाल लो। मैं जानता हूं ये बच्चा देश का भविष्य है, लेकिन इसको मेरा वर्तमान बिगाड़ने का कोई हक नहीं है। बैठ जा बेटा कहीं भी। मतलब मैं ऐसी कोई बात करूंगा नहीं भाई साहब जिससे दिमाग पे लोड पड़े। मतलब बिल्कुल भी ऐसी बात, आदमी को टेंशन का काम करना ही नहीं चाहिए। ये पानी वानी पिला दो, आप अच्छे मस्त रहो, कोई खास बात नहीं है। खास बात ये है कि कोई खास बात ही नहीं है। मतलब क्या होता है, देखो आप बस में बैठ के जाओ भीलवाड़ा से, और आप देखो कि आपके पड़ोस में कोई लड़की बैठी है और आप उसके कंधे पे माथा रख के सो जाओ, बताओ क्या होगा?
पिटोगे, पड़ोसी से भी पिटवाएगी। और इसका उल्टा करके देखो, आप बैठे हो बस में भीलवाड़ा से, कोई खूबसूरत सी लड़की आए और आपके कंधे पे माथा रख के सो जाए, बताओ क्या होगा? पट्टा जिसको चित्तौड़ उतरना होगा, उदयपुर तक तो हिलने का नाम भी नहीं लेगा। मतलब बहुत सारी समस्याएं हो जाती है इस देश में जो समझ में नहीं आती। मैं तो भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट हूं, अपनी इंटेलिजेंटी का मतलब कोई वही नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक लड़की से शर्त लगा ली कि मैं तेरे को बिना हाथ लगाए 20 कदम दूर से किस कर सकता हूं। लड़की बोली ऐसा थोड़ी होता है, कोई किसी को बिना हाथ लगाए 20 कदम दूर से किस, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे मैंने कहा हम कोटा वाले हैं, सब कर देते हैं। बोले ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा तू लगा 10-10 रुपए की शर्त, मैं तेरे को बिना हाथ लगाए 20 कदम दूर से किस करके बताऊंगा। अब मैंने उससे 10 रुपए की शर्त लगाई। अब मैंने कदम बढ़ाए 19 कदम पूरे, और उसका हाथ पकड़ा और लड़की को किस किया। लड़की बोली ओए मैं शर्त जीत गई, तूने तो मुझे छू लिया। मैं बोले ले पकड़ 10 का नोट, अपना काम तो हो गया। क्या बोले? मल्लिका भी आएगी, मैं जानता हूं, उसके बिना तो आपके करवा चौथ के व्रत ही पूरे नहीं होते। आएगी, आप सब आ जाएगा धीरे धीरे, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे तो अपन 1 अरब हो गए। ये धीरे का ही परिणाम था, वरना जल्दी में होते तो मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे होते। वो पिछले दिनों एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ एक पार्क में बैठा हुआ था, तो प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा कि मैं एक शाम तेरी जुल्फों की छांव तले सुस्ताना चाहता हूं। तो प्रेमिका ने अपनी विग उतार के प्रेमी को दे दी, ले और 10-20 दिन सुस्ता ले, फिर वापिस कर देना, ये मेरी नहीं मेरी मम्मी की है। तो स्थितियां बहुत सारी हो जाती है। एक बच्चा और आ गया, किसको ढूंढ रहा है? बेटा तू जिसको ढूंढ रहा है आज वो प्रोग्राम देखने नहीं आई। फोटो करो। जय हो था की लाज रख लो माँ की। अब क्या है देखो स्थितियां। अच्छा बिना धुन के साथ भी वो करता है क्या? हाँ मैं जानता हूँ, कॉलेज के लड़के ऐसे ही होते हैं। अब कॉलेज में तो भाई साहब मैं आपको लाइट नहीं बन पाती। देखो नीचे से सीटी मत बजाओ, नीचे से कोई आवाज आती है तो उसे आयुर्वेद की भाषा में वायु विकार कहते हैं। तो आदमी की इंटेलिजेंस ही होती है। मैं तो जब 6ठी क्लास में पढ़ता था, मैं सबको है ना पास होने का फार्मूला बता रहा हूँ एक। मैं जब स्कूल में पढ़ता था मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, चौथा पन्ना खाली, और एंड के पेज पे लिखता था मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अपना आज दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं आया। ये इंटेलिजेंस ही होती है। वो एक दिन स्कूल में मैडम पढ़ा रही थी, बच्चे को बोला गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। एक लड़का खिड़की के बाहर देख रहा था। मैडम फिर बोली गाय हमारी माता है, लड़का फिर भी खिड़की के बाहर देख रहा था। मैडम फिर बोली गाय हमारी माता है, लड़का फिर भी खिड़की के बाहर देख रहा था। तो मैडम बोली ओए मैं तेरे को पढ़ा रही हूँ, तू खिड़की के बाहर क्या देख रहा है? बच्चा बोला मैडम आपकी मम्मी के पीछे बहुत सारे कुत्ते पड़ गए। बहुत सारी स्थितियां हो जाती है। स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा, बोला एक खेत को 10 आदमी 2 दिन में जोतते हैं, तो उसी खेत को 20 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? बच्चा बोला सर जब एक बार खेत जुत गया तो उसको बार बार जोतने से क्या फायदा है? ये इंटेलिजेंस ही होती है। सारे काम क्या है आदमी के दिमाग से होते हैं। वो एक
20-22 साल की लड़की रास्ते में जा रही थी, उसके पीछे से एक मनचले लड़के ने उसकी चुनरी खींच ली। अब लड़की ने पीछे मुड़ के देखा तो एक 80 साल का बुड्ढा खड़ा था। लड़की ने बुड्ढे से कहा, बाबा ये मेरे पीछे से मिस कॉल आपने किया क्या? हालांकि बुड्ढे को ये बात तो हजम हो गई, पर बुड्ढा बोला, मिस कॉल कैसे करूं बेटा, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। हाँ, मजा आया? अरे वो तो आएगा, तुम चिंता मत करो, सब आएगा। मतलब मजा किसी का बाप का गुलाम थोड़ी ना है। बहुत सारी स्थितियां हो जाती है। एक काला कलूटा लड़का, एक उसकी शादी एक गोरी लड़की से हो गई। अब वो जब भी अपने ससुराल में जाता तो उसकी कोई खातिरदारी नहीं होती थी। एक दिन वो काला कलूटा लड़का जैसे ही उसके ससुराल में गया, उसकी जोरदार खातिरदारी हुई। उसने उसकी सासू से पूछा, रे सासू मेरी इतनी खातिरदारी कैसे हो रही है? तो काले कलूटे लड़के की सास बोली, आप तो दूध पियो, दही खाओ, छाछ पियो, यही मस्त हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कहीं नहीं जाना आपको। काला कलूटा लड़का और चक्कर में पड़ गया। बोले यार, अपनी इतनी खातिरदारी पहले कभी नहीं हुई, अब की बार कैसे हो रही है? तो उसने अपनी लुगाई को बुलाया और वाइफ से बोला, ओए मेरी इतनी खातिरदारी कैसे हो रही है? तो काले कलूटे लड़के की लुगाई बोली, वो क्या हुआ, पिछले दिनों हमारी भैंस का बछड़ा मर गया। अब वो भैंस तुझे देखती है तभी दूध देती है। तो ऐसी स्थितियां हो जाती है। अच्छा, मैं अब आप लोगों की मांग भरने की कोशिश करता हूं। हाँ, आ रही है मल्लिका, आ रही है। भीलवाड़ा का राशन कार्ड बनवा दो, उसका यही रह जाएगी भाई। हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, वही अपनी प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता पतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। वंस मोर के चक्कर में तो अपन पहले ही 1 अरब हो गए। हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री है, वही अपनी प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता पतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। और हिंदुस्तान के एक प्रख्यात अभिनेता हैं, परम उत्तेजित रात्रि कालीन कुशल सेनानी अधर रम्यामी सर्व हृदय गामी नारी वस्त्रम भक्षणामी लिपस्टिक चटखामी महामहिम चुंबन स्वामी आदरणीय इमरान हाशमी। वो पिछले दिनों एक डायरेक्टर ने मल्लिका शेरावत को अपनी फिल्म में द्रौपदी का रोल दे दिया और चुंबन देवता इमरान हाशमी को दुशासन का। तो डायरेक्टर बोला, रे इमरान, इस लड़की का चीरहरण कर। इमरान हाशमी बोला, रे चीरहरण क्या खाक करूं? इसके साड़ी तो है ही नहीं, है तो बनियान में उठ के आगी। ये लाइट बंद करवा दो अगर करवा सकते हो तो दोनों, क्योंकि अब सही है। मतलब मेरे को आप लोगों के पहले चेहरे ही नहीं दिख रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था आदमी है कि गमले रखे हुए हैं। हाँ, अरे चिंता मत करो, सब हो जाएगा। एक दिन मैं बस में सफर कर रहा था, बस में कंडक्टर आ गया। कंडक्टर बोला, भाई साहब आपका हो गया, भाई साहब आपका हो गया, भाई साहब आपका हो गया। एक भाभी जी बैठी थी, भाभी जी से पूछा, भाभी जी आपका हो गया? भाभी जी बोली, रे बेवकूफ, मेरा तो होकर चलने भी लग गया। तो हंसने मुस्कुराने के लिए ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप मस्त रहो। मस्ती में रहना चाहिए आदमी को, क्योंकि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। बिल्कुल, सुरेश जी के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सुरेश जी ने आज की शाम इस भीलवाड़ा के इस कॉलेज में कुछ करने की। सुरेश जी, आपका रंग इतना गोरा है, आप कुछ लगा के आते हैं? मैं तो नहीं, वो मैंने इसलिए पूछ लिया। रीना कहाँ थी? रीना से भी मैं बैक स्टेज बात कर रहा था। हाँ, वही मैं बात कर रहा था। तो अरे रीना, ये सुरेश जी हैं। मैंने रीना से बात कर रहा था, रीना ने पूछा, यार सुरेश शुक्ला इतना गोरा चिट्टा लाल लाल क्यों दिखता है? मैं क्यों, इरादा क्या है? तो बोलते, नहीं मेरे को तो सांवला सुशील पसंद है, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। नहीं,
रीना ने कहा हम तो सुरेश जी मैं बता दूं, आप माइंड ना करें प्लीज, काले लोगों के लिए थोड़ी सी काला हो महबूब का रंग, काला हो, क्योंकि रीना ने क्यों कहा और रीना ने मुझे शेर कह के वो बात का जवाब दिया, काला हो महबूब का रंग तो मोहब्बत का मजा आता है, ना होता है कोई चाहने वाला, ना दामन पे दाग नजर आता है। लेकिन काले गोरे से क्या फर्क पड़ता है? ये क्या है, पंकज जी है ना, इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता, तो ये भी काफी, अब काला गोरा कुछ नहीं होता साहब, अब काला हो तो ये पता नहीं चलता साहब बाल कहाँ है और मुंह कहाँ है, आदमी गंजा हो चाहे काला हो। वो पिछले दिनों एक गंजा आदमी के खोपड़ी पे जाके एक मच्छर बैठ गया, तो दूसरा मच्छर उसको बधाई देने पहुंच गया कि बोला वाह भाई साहब क्या मकान बनाया है। पहला मच्छर बोला रहा मकान नहीं बनाया, अभी तो प्लाट ही काटा है। तो काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, रंग कैसा भी हो। नहीं, आप अभी तक कुंवारे हैं ना, इसलिए मैंने सोच लिया। हाँ, मैं तो वैसा ही हूँ जैसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां सुरेश जी के लिए। ये सुरेश जी का आज की शाम का वो इंट्रोडक्शन था। अरे इतनी कम तालियां, सुरेश जी को दोबारा सुनना नहीं है? Come on! आ गया समझ में? तालियां बजा दो और रिसीव की जाए अगली परफॉर्मेंस, क्योंकि इस बार कुछ हिप हॉप आपके बीच में होने वाला है, क्योंकि बहुत पसंद करती है रीना उस डांस को जिस डांस के लिए अब Q&Q डांस ट्रूप आपके बीच आ रहा है। जोरदार तालियों के बीच रिसीव कीजिए Q&Q।
Am I yo? Am I great? Am I yo? Am I not? Am I yo? Am I yo? Am I great? Am I yo? Am I not? Am I? काइंड का लेख लिखा है। मैं शुरू से ही बहुत सीरियस किस्म का व्यक्ति हूँ। ये बात और है कि मुझको कभी भी हमारे कॉलेज के लेक्चरर्स ने, स्टूडेंट ने कभी सीरियस नहीं लिया।